Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the remaining part of the horizontal deflection system, that is time-based circuit, and after that oscilloscope probes. So, starting with the time-based circuit. This is the horizontal deflection system. As we have As we have discussed in our last lecture, the horizontal deflection system consists of horizontal amplifier, time-based generator and the trigger circuit. The trigger circuit gets the input from the vertical amplifier. The trigger goes to the time-based generator and the time-based generator gives the input to the horizontal amplifier. And the output of horizontal amplifier will be at the horizontal deflection plates. So, to understand the working of horizontal deflection system, it is very important to understand the concept of time-based generator. The time-based generator is used to generate sawtooth waveform that is required to deflect the beam in horizontal section. Sawtooth waveform क्या होती है? This is the sawtooth waveform. Property होती है sawtooth waveform की that it increase to a certain value and then suddenly reach to zero value or the minimum value. So this shape is obtained, that is called as the sawtooth. The voltage generator in the time base is also produce a voltage waveform like a sawtooth. This is called as the ramp voltage or the sawtooth voltage. The property of the sawtooth voltage is used to deflect the beam in horizontal section. Horizontal section मतलब कि जो हमारी x axis रहेगी, this is the y axis for the amplitude and this is the x axis for the time. So we have to deflect the beam in the x axis for the horizontal deflection. So this sawtooth waveform will give a basis for the deflection towards the x axis, or by using the sawtooth voltage, the waveform will be sweep from the left to right on the x-axis. So it is the basic concept of sawtooth voltage waveform. अब टाइम बेस्ड जनरेटर से हमें कैसा वेवफॉर्म मिलेगा? दिस इज द sawtooth voltage waveform. So there are number of methods to generate the sawtooth voltage waveform from time based generator. The first or the basic method is called as the basic time based generator और द स्वीप जनरेटर. जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, द कैपेसिटर ये लगा हुआ है. दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ द स्वीप जनरेटर और द टाइम बेस्ड जनरेटर. द कैपेसिटर विल बी चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस आर. यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आ रही है? थ्रू द रेजिस्टेंस आर. सो द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स and then it will discharge through the transistor T1. ये किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा? ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू. सो देर इज अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी कंटिन्यूस प्रोसेस. पहले चार्ज होगा, जब इसके अक्रॉस इसको इतना वोल्टेज मिल जाएगा इस एमीटर को, दिस इज दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एमीटर, देन ट्रांजिस्टर विल गोज इनटू सैचुरेशन and it will be conduct and the capacitor will discharge to the transistor T1. So the process of charging and discharging will be a continuous process. और यहाँ से हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा? दिस इज कॉल्ड एज द sawtooth voltage. इस वोल्टेज की प्रॉपर्टी क्या है? जब कैपेसिटर चार्ज होगा, दिस इज द चार्जिंग टाइम, और उसके बाद जब ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज अप टू अ मिनिमम वैल्यू. ये जीरो तक नहीं जाएगा, इट विल बी अप टू सम मिनिमम वैल्यू वी मिन. इसी तरीके से ये बार बार प्रोसेस होती रहेगी, चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग देन चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग. सो द वेवफॉर्म विल बी लाइक अ sawtooth वेवफॉर्म. एंड यहाँ से जो हमें मिलेगा, ये जो लीनियरली इंक्रीजिंग पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द रैम्प. इसीलिए इसको कहा जाता है रैम्प वोल्टेज. एंड द बीम विल बी swept from left to the right
left from of the screen to the right during the rise period of the sweep voltage Ts. अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर Ts है, दिस इज द Ts. Ts इज द स्वीप टाइम. तो जब राइज पीरियड आएगा या जब इंक्रीज होगा वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड एज द स्वीप पीरियड Ts. And the time taken by the voltage to fall to the initial value from the maximum is called as the retrace period. यानी कि जब वो मैक्सिमम से मिनिमम तक आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज द TR. जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज TR. यानी कि TS में और स्वीप टाइम में बीम विल बी स्वेप्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन टू द राइट एंड द सेम टाइम द वोल्टेज एट द कैपेसिटर विल बी increasing or the capacitor will be charging. So it is called as the rise period. उसके बाद जब वो मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज द रिट्रेस टाइम TR. The time taken by the voltage to fall to the initial value from the maximum value, it is called as the retrace period or the flyback period. इसको flyback period भी बोलते हैं. During this retrace period, the electron beam is cut off in order to blank the display of the retrace on the screen. यानी कि यहाँ पर वापस से इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो इस तरीके से बार बार हमें ये वाला periodically सिग्नल मिलता रहेगा. So it is the sawtooth waveform that is generated in the time based generator or the sweep generator. ये इसका बेसिक सर्किट है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. कैपेसिटर चार्ज होगा तो राइज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फॉल होगा. तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम ज़्यादा रहेगा और डिस्चार्जिंग टाइम कम रहेगा. सो इट विल बी लाइक अ सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म. और इस वेवफॉर्म से हमें क्या दिख रहा है कि जो बीम रहेगी वो कैसे मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा. अभी मैं अगले डायग्राम में भी शो करूँगी, उससे और क्लियर होगा आपको. सो दिस इज कॉल्ड एज द सॉटूथ वेवफॉर्म. देयर इज वन मोर मेथड to generate sawtooth waveform using unijunction transistor. What is unijunction transistor? यहाँ पे बना हुआ डायग्राम में unijunction transistor. So unijunction transistor is basically a relaxation oscillator, जिससे कि हमें बार बार सेम वेवफॉर्म रिपीटेडली मिलता रहेगा. तो ये डायग्राम में आप देखिए, दिस इज कंसिस्ट ऑफ UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. यहाँ पे दो बेस रहेंगे B1 एंड B2 एंड देर इज वन अमीटर E. सो इट इज कॉल्ड एज द UJT और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. अब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट ही है, लेकिन यहाँ से हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा दैट इज मोर एक्यूरेट देन द बेसिक सर्किट. जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज लाइक अ वेरी गुड सॉटूथ वेवफॉर्म. तो यहाँ पर कैसे ये वर्क करेगा सर्किट? दिस कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर RT and the capacitor CT. The UJT is connected as a voltage operated switch across the capacitor. जब हम सप्लाई को स्विच करेंगे, the VBB will be on, the CT will be charged through the capacitor RT. चार्ज होगा. इसके बाद एमीटर कहाँ कनेक्ट हुआ है? एज द एमीटर इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर. अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे एमीटर का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और उस समय अभी तो UJT ऑफ है, इनिशियली क्या रहेगा, UJT ऑफ है, लेकिन जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा UJT विल कम्स इनटू द कंडक्शन और जैसे ही कंडक्शन में आएगा द कंडक्शन देन द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज. क्योंकि अब यहाँ पर जब डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा इसका, so now the capacitor will discharge and the waveform will be like this. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही इनिशियली
जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यूजेटी उस समय ऑफ रहेगा एंड द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस RT। धीरे धीरे इसका वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा एंड दिस ऑल्सो इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द एमिटर ऑफ द यूजेटी। अब जैसे ही यूजेटी का वोल्टेज बढ़ेगा ये धीरे धीरे कंडक्शन में आएगा एंड दिस विल डिस्चार्ज द कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है कहाँ कनेक्ट हुआ है, दिस इज कनेक्टेड विद द एमिटर। अगर ये डिस्चार्ज होगा तो उसी के साथ साथ एमिटर का वोल्टेज भी धीरे धीरे वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। सो अगेन द यूजेटी कम्स इनटू द कट ऑफ कंडीशन एंड नाउ द कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट टू चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस RT। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसे हम वेवफॉर्म से समझ सकते हैं। एट द टाइम कैपेसिटर स्टार्ट टू चार्ज, जैसे ही ये पीक वैल्यू पे पहुंचा उसी समय यूजेटी क्या हो गया, ऑन हो गया। अभी इनिशियली ऑफ था, उसके बाद ये यूजेटी यहाँ पे आके पॉइंट पे आके ऑन हो गया और उसी समय ये डिस्चार्ज हो गया। अब अगर ये डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे यूजेटी का वोल्टेज भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूजेटी वापस से ऑफ हो जाएगा। दिस इज द ऑफ कंडीशन ऑफ यूजेटी। अब जैसे यूजेटी ऑफ हुआ वैसे ही वापस से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और अगेन व्हेन इट गेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अगेन यूजेटी विल बी ऑन। तो इस पॉइंट पे आके यूजेटी ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस तरीके से मिलता रहेगा और जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा दिस इज़ अ सॉ टूथ वेवफॉर्म। ये जो सॉ टूथ वेवफॉर्म बन रही है दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट साइड। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूजेटी। सेम कंसेप्ट रहेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो वेवफॉर्म मिलेगी दैट इज़ मोर एक्यूरेटली शेप्ड। सो इट इज़ द बेसिक टाइम बेस्ड जनरेटर यूजिंग यूजेटी। यही इसमें एक्सप्लेन किया इस वाली स्लाइड में मैंने। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिपीट्स इटसेल्फ एज लॉन्ग एज द सप्लाई इज प्रेजेंट। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर गिव्स द रिक्वायर्ड स्वीप वोल्टेज। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है यानी कि जो ये वोल्टेज हमें मिल रहा था दिस इज अ VC, दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज। ये हमें क्या देगा, दिस इज द रिक्वायर्ड स्वीप वोल्टेज। These circuits that generate non-sinusoidal waveforms are called as the relaxation oscillators। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वेवफॉर्म हमें मिल रही है दिस इज नॉन साइनसोइडल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्वीप जनरेटर कैन बी वेरीड इन स्टेप्स बाय यूजिंग नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज रिक्वायर्ड यूजिंग अ स्विच। अगर हमें इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। Varying the value of the resistor also varies the frequency. This makes the fine frequency control of the sweep generator. By changing the value of the capacitor and the resistor, the time constant RT/CT can be changed. अब ये जो पूरी वर्किंग हो रही है किस पे डिपेंड कर रही है, दिस वर्किंग डिपेंडिंग अपॉन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट किस पर डिपेंड रहेगा, वो दिस विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ RT/CT। सो डिस्चार्जिंग किसके थ्रू होगा, ये R1 के थ्रू होगा। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो टाइम कांस्टेंट को वेरी करके हम इसके राइज टाइम और फॉल टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ द टाइम बेस्ड जनरेटर यूजिंग UJT। नाउ नेक्स्ट इज another type of the time based generator that uses trigger, or we can say triggered sweep in CRO. Normal sweep generator apply their sweep voltage through the horizontal amplifier to the horizontal deflecting plate. This does not require any start signal for the sweep to generate its ramp voltage. जो इसके पहले हमने दोनों डिस्कस किए थे वो कैसे थे, दैट वाज अ नॉर्मल स्वीप जनरेटर। लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ द ट्रिगर्ड स्वीप जनरेटर। तो यहाँ पर जब वहाँ पे ट्रिगर पल्स आएगी
या जब वहाँ पे ट्रिगर इनपुट आएगा तभी उसका आउटपुट चेंज होगा। और वी कैन से वी आर कंट्रोलिंग द आउटपुट ऑफ स्वीप जनरेटर बाय गिविंग अ इनपुट एज अ ट्रिगर। इट इज़ वेरी एडवांटेजियस फॉर डिस्प्लेइंग सिग्नल्स ऑफ शॉर्ट्स ड्यूरेशन। अगर कोई ऐसा सिग्नल जिसके ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, अगर हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं, उसके वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो वी कैन स्ट्रेच दैट सिग्नल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्क्रीन बाय कंट्रोलिंग द स्वीप जनरेटर आउटपुट टू बी प्रेजेंट ओनली एट अवर कमांड। तो अगर हम ट्रिगर को इस तरीके से सेट करें कि वो आउटपुट हमें बहुत देर तक मिलता रहे, सो दिस विल बी वेरी एडवांटेजियस for measurement. So this is done by applying a trigger pulse that triggers or start the sweep voltage. So this is a modified UJT sweep generator circuit as shown in the figure. जैसे कि हमने अभी डायग्राम पढ़ा था UJT वाला, जिसमें कि हमने सिंपल UJT यूज़ किया था। अब उसी सर्किट में हमने एक वेरिएशन किया है, वी आर यूजिंग ट्रिगर इनपुट। तो ट्रिगर इनपुट से हम इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमें वेरिएशन चाहिए आउटपुट में, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ द मॉडिफाइड यूजेटी स्वीप जनरेटर सर्किट, और वी कैन से ट्रिगर्ड स्वीप जनरेटर इन CRO। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सेम डायग्राम है। इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बायस हमने लिया हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है यहाँ पर बाय यूजिंग R3 एंड R4। जब हम सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, जैसे कि पहले डायग्राम में हमने पढ़ा था UJT वाले में, यहाँ पर भी कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस RT। उसके बाद धीरे धीरे चार्ज होते जाएगा, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। सेम कंडीशन आएगी, इसका वोल्टेज बढ़ेगा। ये वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो रहा है, एट द एमिटर ऑफ UJT। दिस इज द एमिटर ऑफ, यहाँ पे इसमें कनेक्ट हो रहा है ये। अब अगर इसका एमिटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो धीरे धीरे UJT कंडक्शन में आना शुरू हो जाएगा, एंड वेन एवर द UJT बिकम्स ऑन द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज। तो वही प्रोसेस यहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस किस पर डिपेंड करेंगी, ऑन द एग्जिस्टेंस और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगर इनपुट। अब ट्रिगर इनपुट क्या है, यहाँ पर वी आर गिविंग अ ट्रिगर पल्स हियर। यहाँ पे हमने एक इस तरह की पल्स दी है, जिस पल्स की ये कह सकते हैं हम कि जब इसकी पॉजिटिव लेवल आएगा देन द आउटपुट विल बी हाई, और जब नेगेटिव एज आएगी या नेगेटिव लेवल आएगा देन द आउटपुट विल बी लो। तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव हुआ, यहाँ पर हमें ट्रिगर दे रहे हैं, जैसे ही अभी इनिशियली 0 चल रहा था, जैसे ही पल्स नेगेटिव हुई उस समय पे क्या मिल गया हमें, दिस इज कॉल्ड एज द रिट्रेस टाइम। अभी उसकी वैल्यू VD थी, जो भी वोल्टेज यहाँ पे था दैट इज VD, और उसके बाद VD और वी कैन से आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, इसके VD भी बोल सकते हैं, इसको VO भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर हमने दिया तो वोल्टेज क्या हो गया, उसके मिनिमम वैल्यू पे आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज द रिट्रेस पीरियड। अब वापस से जब ट्रिगर हाई हुआ या पॉजिटिव हुआ तो अगेन इट विल स्टार्ट टू राइज, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्वीप टाइम। तो ट्रिगर को हमें कहाँ देना है, इसको हम चेक करके स्वीप टाइम को और रिट्रेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रिगर को यहाँ जाके दिया हुआ है, यानी कि इसका स्वीप टाइम तो यहाँ एंड हो गया, यानी कि राइज यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे रिट्रेस शुरू नहीं हुआ। रिट्रेस कब स्टार्ट हुआ, व्हेन वी गिव द नेगेटिव ट्रिगर पल्स, यानी कि दिस इज द होल्डिंग टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द होल्ड टाइम और होल्डिंग टाइम। तो ट्रिगर पल्स से हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, हम इस पल्स को स्ट्रेच कर पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस पल्स को स्ट्रेच कर दिया। अगर हम नॉर्मल UJT यूज़ करते तो यहीं से इसका रिट्रेस शुरू हो जाता, लेकिन ट्रिगर के कारण इसका रिट्रेस यहाँ से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हेन वी आर गिविंग द नेगेटिव ट्रिगर पल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिगर्ड स्वीप इन द CRO। तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों सर्किट्स में, बेसिक सर्किट UJT का जो था उसमें हमने सिंपल चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंसेप्ट यूज़ करके सॉटूथ वेवफॉर्म बनाया था, और यहाँ पर वी आर यूजिंग अ ट्रिगर पल्स टू इनिशिएट द रिट्रेस एंड द स्वीप टाइम। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय
using the trigger pulse. So it is very advantageous in case of short duration outputs. So it is the modified UJT स्वीप जनरेटर सर्किट. अब जैसे यहाँ पर एक और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से रिट्रेस शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर वोल्टेज था हमारा, लेकिन वो रिट्रेस में आ गया, तो इस वजह से इसका वोल्टेज वापस से कम हो गया. अब ये मान के चले हम, दिस इज द आउटपुट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एट दिस मोमेंट, एंड एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द वर्टिकल एम्पलीफायर. सो ये उस केस में क्या होगा, हमें वर्टिकल से तो इनपुट मिल रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ पे आ गया है, वो मिनिमम वैल्यू पर आ गया है. सो इन दैट केस वी हैव टू डिले द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर. इसलिए वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वी हैव यूज डिले लाइन. वहाँ पर हम वर्टिकल एम्पलीफायर में क्या यूज़ करते हैं, डिले लाइन, टू सिंक्रोनाइज द आउटपुट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम. दोनों के आउटपुट सिंक्रोनाइज होना चाहिए. सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगर्ड स्वीप इन CRO. बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ ट्रिगरिंग हो सकती है वहाँ पर, जैसे कि अभी है तो हमने यहाँ पर एक ट्रिगर दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर कहलाता है, लेकिन हमारे जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में जो ट्रिगर सर्किट लगा हुआ है दैट इज़ द इंटरनल ट्रिगर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा. एंड दिस इज़ अ मॉडिफाइड सर्किट जिसमें कि हम एक और ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं टू कंट्रोल द राइज टाइम एंड द स्वीप टाइम ऑफ द वेव फॉर्म. सो इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. तो यहाँ पर हमने 3 सर्किट डिस्कस किए टाइम बेस्ड जनरेटर में. एक बेसिक टाइम बेस्ड जनरेटर जिसमें कि हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था. सेकेंड वॉज टाइम जनरेटर यूजिंग UJT, एंड थर्ड इज़ ट्रिगर्ड स्वीप जनरेटर इन CRO. यानी कि ट्रिगर्ड स्वीप में भी सेम रहेगा, बस उसमें हमने UJT यूज़ किया है और उसमें ट्रिगर इनपुट दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिगर्ड स्वीप जनरेटर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल डिस्प्ले. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सॉ टूथ से हमें क्या मिल रहा है, सॉ टूथ जनरेटर से कैसी वेव फॉर्म मिल रही है, वी आर गेटिंग द वेव फॉर्म लाइक दिस. तो ये वेव फॉर्म कैसे जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन अगेन राइट टू लेफ्ट, यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, थोड़ा सा पीछे आके वापस राइट देन लेफ्ट, यानी कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. सो द टाइम बेस्ड सर्किट अप्लाइज a sawtooth waveform to the horizontal deflection plates और the X plates, जिसको हम X plate भी बोल सकते हैं क्योंकि X डायरेक्शन में काम करता है. तो जैसे फिगर 1 में दिखाया हुआ है, इस तरीके से हमें sawtooth waveform मिलेगा और इसी तरीके से टाइम एक्सिस पर हमें आउटपुट मिलता जाएगा. Now the beam is moved from the left hand side of the screen to the right during the time that the voltage rises to a maximum, then is returned rapidly to the left as the voltage return to 0. जैसा कि अभी हमने कैपेसिटर से देखा था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था, पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद रैपिडली टू द लेफ्ट एंड देन अगेन चार्ज टू द राइट, रैपिडली टू द लेफ्ट देन अगेन चार्ज टू द राइट एंड देन रैपिडली टू द लेफ्ट. तो जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. तो इसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, लेफ्ट टू द राइट, यानी कि ये कह सकते हैं हम लेफ्ट से राइट ही आगे, लेफ्ट टू राइट ही आगे प्रोसेस हो रहा है. दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो यहाँ पर ये जो वापस से इसका मूवमेंट हो रहा है, वापस से ये जो राइट से लेफ्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लाई बैक टाइम. जैसा कि अभी हमने देखा था रिट्रेस पीरियड, इसको ही हमने रिट्रेस पीरियड भी बोला था, TR. और ये क्या था, दिस इज द स्वीप टाइम एंड दिस इज द TR. तो अगर हमें सॉटूथ वेव एक्यूरेट चाहिए या हमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट से सही आउटपुट चाहिए, सो दिस फ्लाई बैक टाइम शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. इसको हमें कम से कम रखना पड़ेगा, यानी कि ये वाला मूवमेंट हो रहा है ये तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमें आगे जाना है, बट ये जो रिट्रेस हो रहा है ये कम से कम होना चाहिए. दिस शुड बी मोर एंड दिस शुड बी लेस. चार्जिंग शुड बी मोर देन द डिस्चार्जिंग. चार्जिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन द डिस्चार्जिंग टाइम. Now if a voltage is applied to the vertical deflection plates or Y plates and we are giving a sawtooth waveform to the horizontal deflection plate,
then waveform at the screen will be display like this. अगर हमने वर्टिकल प्लेट्स पे हमने ये इनपुट दिया है, वर्टिकल प्लेट्स मतलब कौन सी प्लेट्स हो गई, वाई प्लेट्स, और ये हो गई एक्स प्लेट्स। वाई प्लेट्स पे क्या जाएगा, जो भी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड जाएगा यानी कि वोल्टेज, और एक्स प्लेट पे क्या जाएगा, जो भी हम टाइम बेस यूज़ कर रहे हैं, टाइम बेस जनरेटर से हमें कैसा वेवफॉर्म मिलेगा, सॉटूथ वेवफॉर्म। तो यहाँ से हम कौन सी एक्सिस लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइम। और जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा हमें, दिस इज़ द, क्योंकि ये तो इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है और ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, वेरिएशन विद द टाइम। तो जब ये दोनों सिग्नल आपस में कंबाइन होंगे तो हमें टाइम के साथ वोल्टेज का वेरिएशन मिलेगा। इसीलिए दोनों का साथ में सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज इनमें से एक भी सिग्नल नहीं दिया जा रहा है तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। एक बार मैं इसको और रिवाइज करवा रही हूँ। अगर इनपुट हम दे रहे हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो कि वोल्टेज है और एम्पलीट्यूड है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो भी आ रहा है, दिस इज़ द सॉटूथ वेवफॉर्म वेरिंग विद टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट मिलेगा टाइम एक्सिस और वोल्टेज विद द दिस, दोनों को हम साथ में सिंक्रोनाइज करेंगे, द आउटपुट ऑब्टेन विल बी दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि सॉटूथ वेवफॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉटूथ वेवफॉर्म टाइम बेस जनरेटर से नहीं प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर, तो हमें स्क्रीन पर सही वेवफॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें टाइम एक्सिस ही नहीं मिलेगी वहाँ पर। ओके, सो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल डिस्प्ले। नेक्स्ट इज अगेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल डिस्प्ले। जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये जो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है, दिस इज़ द वेवफॉर्म और द पैटर्न ऑन द ऑफ CRO। तो ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों आउटपुट को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, तो यहाँ पर हमें इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट स्वीप जनरेटर रिक्वायरमेंट। एक तो ये कि स्वीप मस्ट बी लीनियर, यानी कि जो स्वीप वोल्टेज है मस्ट राइज लीनियरली टू द मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर फुल स्क्रीन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट। एंड द सेकेंड इज दैट द स्पॉट मस्ट मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि लेफ्ट टू राइट, otherwise the signal will be traced backwards during the return sweep. This means that the sweep voltage must drop suddenly after reaching its maximum value, यानी कि जो रिट्रेस पीरियड है वो सबसे कम होना चाहिए। जितना रिट्रेस पीरियड कम होगा उतना ही हमें आउटपुट एक्यूरेट मिलेगा। जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक सॉटूथ वेवफॉर्म बना हुआ है। दिस इज ए सॉटूथ वेवफॉर्म जिसका कि ये ट्रेस यानी कि स्वीप टाइम बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, and this is the retrace time, and this is the second waveform is the vertical deflection plates output, and the third one is the output at the CRO screen। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके हम स्क्रीन पे ये वाला आउटपुट मेजर करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टाइम t1, यहाँ पर आप ये देखिए एट द टाइम T1 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें, -E1, और T0 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, -E2। ये हमने वोल्टेज वैल्यूज ले ली है अपने मन से, जिससे कि हमें क्लियर कर सके कि किस तरीके से सॉटूथ वोल्टेज वेरी होते साथ ही आउटपुट में चेंज होगा। एट द टाइम T0, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे T0 पर। T0 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें, -E2, एंड द नेगेटिव हॉरिजॉन्टल वोल्टेज मूव्स द स्पॉट टू पॉइंट 1 ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, स्पॉट एट द पॉइंट 1 ऑन द स्क्रीन, क्योंकि T0 यहाँ पर है और उसी के साथ -E2 जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के साथ टाइम एक्सेस मिलेगा, और इसके साथ हमें उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा, 0 पर है तो ये पॉइंट 1 पे हमें इसका स्पॉट मिलेगा। एट दिस इंस्टेंट द सिग्नल वोल्टेज इज 0, जैसा कि हम B से देख सकते हैं, फिगर B से वोल्टेज कितना है यहाँ पर, 0 है। सो द स्पॉट विल बी एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द 0 लाइन ऑन द स्क्रीन, यानी कि हमें कहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद T1 पे देखिए, T1 पे वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें, -E1, एंड -E1 इज मोर पॉजिटिव देन
माइनस E2। तो अब ये इस केस में वोल्टेज कितना मिल रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू E and this is the peak value, positive peak value. So the point present its maximum upward deflection of the spot. तो maximum upward deflection कितना हो सकता है 2। तो इस समय पर यानी कि at the time t1 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। तो हमें किस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, पहले 1 पे था, अब कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा T2 पे वोल्टेज कितना आ रहा है 0। अब इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 है, सॉटूथ वोल्टेज इज 0, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा एंड द स्पॉट इज एट द सेंटर। यहाँ पे इनपुट को वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से भी 0 मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल से भी 0 मिल रहा है। तो दोनों मिला के ये इस पॉइंट कहाँ पे आएगा, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड विद द 0 वैल्यू। तो इस वाले केस में देर इज़ नो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट 3 पर क्या मिलेगा हमें, सेंटर पे मिलेगा विथ नो एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ गए। नाउ एट द टाइम T3, अब T3 पे आप देखिए, T3 पर कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें, प्लस E1, और इस समय क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव पीक। तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट होकर कौन सी वैल्यू लेगा, वो नेगेटिव पीक की वैल्यू लेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पीक मिल रहा है। सो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू द 4.4 ऑन द स्क्रीन, ये मिलेगा। सिमिलरली when we move from the left to right at the time T4, it is having the value, again it becomes T4 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, द सॉटूथ वोल्टेज इज प्लस E2, सॉटूथ वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई है, प्लस E2। सो दिस विल मूव द स्पॉट टू द पॉइंट 5, लेकिन यहाँ पर T4 पे वोल्टेज कितना है 0, तो ये 0.5 कहाँ पे लाई करेगा, 0 ऑफ द सिग्नल वोल्टेज। यानी कि जो हमें वेवफॉर्म मिल रही है वो हर पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे with the voltage of the sawtooth waveform and the voltage of the input vertical amplifier. So after combining these two we will get this voltage at the CRO screen. So is it clear that different time we are getting different point on the CRO screen and that will produce a complete output like this. So this is the basic concept of the signal display ऑफ द CRO। एक बार इसको मैं और रिवाइज करवा रही हूँ। जब T0 था तब वोल्टेज माइनस E2 था और उस समय सिग्नल वोल्टेज क्या था, 0 पर था। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, स्क्रीन पे 0 पे मिलेगा। जब T1 टाइम आया, T1 पे वोल्टेज कितना आ गया, माइनस E1। उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी सिग्नल वोल्टेज की, पीक वोल्टेज E। तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 2 पर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पर। इसी तरीके से अब T2 पे जब हम आए, T2 पर ये 0 पे है और ये सिग्नल वोल्टेज भी 0 पे, दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। तो ये वेवफॉर्म यहाँ पर 0.3 पे शिफ्ट हो गई। एट द नेक्स्ट टाइम T3 नेगेटिव पीक मिल रहा है हमें एट द वोल्टेज सॉटूथ वोल्टेज E1। तो इस टाइम पर T3 पर हमें कहाँ मिलेगा पॉइंट, एट द नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल वोल्टेज। सिमिलरली T4 पर वोल्टेज अगेन 0 हो गया है और वोल्टेज सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म कितना दे रहा है, E2। तो टाइम T4 पर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 0 पे मिलेगा ये। सो दिस इज़ द वेवफॉर्म जो कि हमें CRO पे मिलेगा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमें यहाँ CRO के लिए समझना ज़रूरी है। सो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल डिस्प्ले। Now next is different types of display waveform on the screen। जैसा कि अभी हमने डिस्प्ले वेवफॉर्म देखा किस तरीके से जनरेट होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले जो डायग्राम बना हुआ है दिस वन, दिस इज़ फॉर द DC इनपुट एंड दिस इज़ फॉर द AC इनपुट। जब हम वहाँ पर DC सिग्नल अप्लाई करेंगे तो DC सिग्नल की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि अगर दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो अगर हमने अपर प्लेट को पॉजिटिव रखा हुआ है, यानी कि अगर हमने 12 वोल्ट दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट होंगे, टुवर्ड्स द अपर साइड। सो इन केस ऑफ डीसी इनपुट हमें कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और एसी में कैसे मिलेगा हमें, अल्टरनेटिंग, क्योंकि इनका पोलरिटी चेंज हो रही है, कभी ये प्लस है, कभी ये माइनस है, अदरवाइज इट इज माइनस, इट इज प्लस। सो ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ पोलरिटी द आउटपुट विल बी लाइक दिस। स्क्रीन पे जो मिलेगा वो ये मिलेगा। सो दीज आर द टू display of the screen in case of first is DC input and the other is AC input. इसी तरीके से अगर हमने केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे इनपुट दिया है और हॉरिजॉन्टल पे इनपुट नहीं दिया है, तो हमें टाइम एक्सिस पे आउटपुट नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, क्या एक स्पॉट मिलेगा जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के साथ कनेक्ट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपर प्लेट पर। अगर सेम कंडीशन में हमने टाइम बेस को ऑन कर दिया, डीसी इनपुट है और टाइम बेस ऑन है, तो कैसा मिलेगा आउटपुट, हमें इस तरीके से मिलेगा, जो कि यही वाला है। जब टाइम बेस को ऑन करेंगे तो टाइम के साथ वो वेरी करेगा, टाइम बेस को ऑन नहीं करेंगे तो वो कांस्टेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर हमने एसी इनपुट दिया हुआ है और उसका टाइम बेस हमने बढ़ा दिया है, यानी कि टाइम बढ़ा दिया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर फास्ट टाइम बेस अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, और अगर स्लो टाइम बेस यूज़ करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन। इन द नेक्स्ट स्लाइड इसी को हमने और थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है। व्हेन द टाइम बेस इज ऑफ, उस समय आउटपुट कैसा मिलेगा, स्क्रीन पे आउटपुट हमें कैसा दिखेगा। अगर हमने कोई भी, अगर टाइम बेस ऑफ है, यानी कि दो प्लेट से एक वाई प्लेट और एक एक्स प्लेट, इसमें से हमने एक्स को ऑफ कर दिया है, यानी कि टाइम बेस को ऑफ कर दिया है, तो केवल कौन सा मिलेगा हमें, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और द वाई प्लेट। तो अगर हमने उस समय वाई प्लेट पर भी कोई इनपुट नहीं दिया, यानी कि नो इनपुट कंडीशन है, तो वो सेंटर पे रहेगा, इसमें कोई भी हमें वेवफॉर्म नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। अब इसके बाद अगर हमने डीसी इनपुट दिया है जिसमें कि दो प्लेट्स में से, वर्टिकल प्लेट्स में से नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द लोअर साइड। तो हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट कैसा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। अगर अपर प्लेट को पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द अपर प्लेट। अगर अपर प्लेट को और पॉजिटिव करेंगे तो उसका डायरेक्शन और ऊपर आ जाएगा, मतलब कि वो और शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। और अगर एसी इनपुट देंगे हम, तो टाइम बेस को हमने ऑफ ही रखा हुआ है और एसी इनपुट दिया है, तो एसी इनपुट है तो टाइम वाली एक्सिस तो खत्म है, टाइम वाली एक्सिस में कुछ नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। तो जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यानी कि वर्टिकली इट विल बी मूव, देयर विल बी नो मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि टाइम बेस नहीं देने से क्या चेंज आता है वेव फॉर्म में। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव यूज टाइम बेस विद द वर्टिकल इनपुट, दोनों हमने साथ में दिए, यानी वाई भी, यानी कि हम यहाँ पर we have used Y plate and X plate both. यहाँ पर हमने Y को भी दिया हुआ है और X को भी दिया हुआ है, Y पे भी दिया हुआ है, X पे भी दिया हुआ है। तो अब ऐसे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर जब इनपुट नहीं देंगे, यहाँ जब इनपुट नहीं दिया है, टाइम बेस ऑन है और वर्टिकल इनपुट यानी कि Y वाली एक्सिस पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, केवल X पे दिया हुआ है, X पे दिया है, Y पे नहीं दिया है, तो केवल कौन सा मिलेगा हमें, टाइम बेस यानी कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले मिलेगा। जब हमने टाइम बेस को ऑन रखा हुआ है और उसके साथ अपर प्लेट यानी कि वाई, अब हमने वाई को भी देना शुरू कर दिया, दोनों यहाँ पर ऑन है, वाई भी और एक्स भी, और अपर प्लेट को हमने पॉजिटिव कर दिया है, तो टाइम के साथ वेरी होगा और किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द अपर प्लेट। इसी तरीके से अगर लोअर प्लेट को पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द लोअर प्लेट, और टाइम बेस ऑन है तो टाइम के साथ भी वो वेरी होता जाएगा। इन द सेम कंडीशन फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम बढ़ जाएगा, दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट,
दिस इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी AC इनपुट एंड दिस इज़ द AC इनपुट विद अ डायोड, यानी कि रेक्टिफायर जैसा काम करेगा यहाँ पर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले वेव फॉर्म ऑफ CRO. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम बेस ऑफ करने से क्या चेंज आएगा और टाइम बेस को ऑन करने से क्या चेंज आएगा, क्योंकि वर्टिकल एम्पलीफायर जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे इनपुट दे रहा है वो कनेक्टेड है, लेकिन अगर हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे इनपुट नहीं दिया तो उससे डिस्प्ले में चेंज हो जाएगा और हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगा. सो टू गेट द एक्यूरेट आउटपुट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द आउटपुट on both the deflection plates, vertical and horizontal. So it's all about the time based circuit. Next is trigger circuit. ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है? ट्रिगर सर्किट कहाँ लगा रहेगा? बिफोर द टाइम बेस्ड जनरेटर. ट्रिगर सर्किट triggers the time based generator to generate a sawtooth waveform when the vertical input signal is present. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द ट्रिगर सर्किट. दिस इज द ट्रिगर सर्किट. वर्टिकल एम्पलीफायर का जो इनपुट है, वर्टिकल एम्पलीफायर जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा? ट्रिगर में जाएगा. ट्रिगर सर्किट कहाँ कनेक्ट है? वर्टिकल एम्पलीफायर से. ये जो पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, दिस इज द ट्रिगर सर्किट. तो यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर का जब भी वर्टिकल एम्पलीफायर में इनपुट आना शुरू होगा उसी समय ट्रिगर सर्किट में भी इनपुट आना शुरू हो जाएगा. ट्रिगर सर्किट इज यूज टू कन्वर्ट द इनकमिंग सिग्नल इनटू अ ट्रिगर पल्स so that the input signal and the sweep frequency can be synchronized. इसका यूज़ क्या है? To synchronize the vertical signal or the vertical deflection plate and the horizontal deflection plate. This is triggered by the portion of vertical amplifier output. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसको ट्रिगर कहाँ से मिल रहा है? From the vertical amplifier. This circuit initiates the time based generator. It is a link between the vertical input and horizontal time base. It is very important term. It is the link between vertical input and the horizontal time base. यानी कि vertical input तो ये हम दे रहे हैं और उसके साथ यहाँ से हम ट्रिगर पल्स किसको देंगे? टाइम बेस जनरेटर को. तो इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रिगर सर्किट. सो ट्रिगर सर्किट इज द लिंक between the vertical input signal and the horizontal time base signal. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है. वहाँ पे कंपैरेटर लगा हुआ है. उस कंपैरेटर का काम क्या रहेगा? इनपुट फ्रॉम ट्रिगर सेलेक्टर. एक और यहाँ पे बना हुआ कनेक्शन इनपुट फ्रॉम ट्रिगर सेलेक्टर. यहाँ पे तीन तरीके से हम ट्रिगर इनपुट ले सकते हैं. एक होता है एक्सटर्नल इनपुट, एक होता है इंटरनल इनपुट और एक होता है लाइन इनपुट. तो कौन सा इनपुट हमें चूज करना है? दिस इज डन बाय दिस इनपुट फ्रॉम ट्रिगर सेलेक्टर स्विच. उसके बाद कंपैरेटर का दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट है? दिस इज कनेक्टेड एट द ट्रिगर लेवल. ट्रिगर लेवल मतलब कि पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव देना है. तो यहाँ से हम ट्रिगर लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ द कंपैरेटर विल कंपेयर द बोथ द वैल्यूज एंड विल जनरेट अ पल्स. और ये पल्स कहाँ जाएगी? ये पल्स जाएगी टाइम बेस जनरेटर में. दिस पल्स विल गोज टू द, यहाँ से जो ट्रिगर पल्स से जो पल्स जनरेट होगी ये कहाँ जाएगी? टू द टाइम बेस जनरेटर. और टाइम बेस जनरेटर क्या जनरेट करेगा? सॉटूथ वेवफॉर्म. और सॉटूथ वेवफॉर्म से हमें क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और द टाइम एक्सिस. सो इट इज द वर्किंग ऑफ ट्रिगर सर्किट टू इनिशिएट द synchronization between the vertical input signal and the horizontal deflection signal. Next is oscilloscope probes. A oscilloscope probe is a device that makes a physical and electrical connection between a test point or signal source and an oscilloscope. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसका काम क्या है? What is the use of probe? प्रोब मतलब एक कनेक्टिंग लीड होती है जिसको कि हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसमें कम से कम लॉसेस हो. तो यहाँ पर प्रोब का यूज़ क्या है? टू मेक अ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन अ टेस्ट पॉइंट और अ सिग्नल सोर्स एंड एन ऑसिलोस्कोप. तो जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करना है वो टेस्ट पॉइंट यहाँ लगा रहेगा और दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट हो गया? CRO से. सो CRO probes perform very important function of connecting the test circuit to the oscilloscope without altering, loading or disturbing the test circuit. यानी कि ये जो प्रोब हम कनेक्ट करेंगे इसका कोई भी साइड इफेक्ट उस सर्किट पर नहीं होगा जिस सर्किट से हम इसको कनेक्ट करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज
हाई इम्पिडेंस एंड हाई बैंडविड्थ। हम ये चाह रहे हैं कि जो हम प्रोब कनेक्ट करें उसका सर्किट पे कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम जो प्रोब चूज करेंगे दैट शुड बी विथ वेरी हाई इम्पिडेंस प्रॉपर्टी एंड द बैंडविड्थ शुड ऑल्सो बी हाई टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स ऑफ वाइड बैंडविड्थ, यानी कि हम डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को हम यहाँ से भेज सके, सो द बैंडविड्थ शुड बी वेरी हाई। सो इट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO प्रोब, जिसमें कि हम देख सकते हैं प्रोब टिप यानी जिससे कि हमको इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना है, प्रोब हेड, उसके बाद कोएक्शियल केबल है लगा हुआ है, कोएक्शियल केबल में शील्डिंग यूज़ की है हमने जिससे कि वहाँ पर लॉसेस कम से कम हो। उसके बाद एक टर्मिनेशन सर्किट है जो कि CRO में कनेक्ट होगा। सो इट इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ CRO प्रोब। यहाँ पे हम किस टाइप का केबल यूज़ करते हैं, कोएक्शियल केबल। टाइप्स ऑफ प्रोब्स, basically there are two different types of probes. First is direct probe or passive probe. It is simplest of all the probes. It is use shielded coaxial cable, जैसे कि हमने देखा था coaxial cable को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। That avoids stray pickups which may create problems when low level signals are being measured. It is usually used for low frequency और low impedance circuit. जो हम डायरेक्ट या पैसिव प्रोब्स को यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर लो फ्रिक्वेंसी और लो इम्पिडेंस सर्किट्स। इसको हम पैसिव क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसको पैसिव प्रोब क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स मीन्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो probe head है, this is the probe head, it consists of a parallel combination of R and C, and similarly the termination circuit also consists of a parallel combination of R and C. तो यहाँ पर दोनों साइड हमने पैसिव कंपोनेंट यूज़ किए हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द पैसिव प्रोब। और ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, एंड इन एक्चुअल इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, ये ऐसा दिखता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं इसका तो यू कैन सी दैट इसका जो शेप होता है, डिज़ाइन होता है, इसका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोब, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोब इज एक्टिव प्रोब। द एक्टिव प्रोब कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज अ प्रोब हेड। जैसे कि डायग्राम में दिखा है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, वी आर यूजिंग FET हियर। यहाँ पे हमने FET यूज़ किया है। FET इज अ एक्टिव कंपोनेंट that is cascaded with BJT emitter follower. The FET source follower provides high input impedance and low output impedance. इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई रहता है जिससे कि ये सर्किट में किसी भी तरीके का लोडिंग इफेक्ट नहीं देता। Whereas the purpose of BJT emitter follower is that it avoids or eliminates the impedance mismatching. तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, एक होता है FET सोर्स फॉलोअर बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनपुट इम्पिडेंस, और दूसरा यूज़ करते हैं BJT एमिटर फॉलोअर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इम्पिडेंस मिसमैचिंग एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हम एक्टिव कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव प्रोब्स। और इसका जो एक्चुअल दिखने में होता है, दिस इज द एक्टिव प्रोब। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं दैट दिस इज द एक्टिव प्रोब। So it's all about the oscilloscope probes. In this lecture we have discussed time-based generator and the oscilloscope probes. Time-based circuit is very important. Time-based generator generates sawtooth waveform. It can be generated by using UJT, by using transistor, or by using a triggered sweep. That's all for this lecture. Thank you.